Good morning, dear students. So, today we will discuss some more problems in sets. Fine. So, day, other class, we have discussed couple of sums based on intersection, union, difference of two sets. Now, we will discuss some word problems of sets. This is what based on cardinal number that we have already came to know number of A union B is equals to number of A plus number of B and minus number of A intersection B. This is for two finite sets A and B. Similarly, for three finite sets we have if A, B, C, three finite sets, then number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of A intersection C minus number of B intersection C and plus number of A intersection B intersection C. So these two are cardinal number result for two finite sets and for three finite sets. Let's discuss this question number 7 of your textbook. Now, what are the information it is given in the question? In a class of 200 students. So let's say we take this total X or U, you can say total number of all students, 200 students. So you can say number of X is equal to here 200. Fine. Then we have who appeared in a certain examination, 35 student failed in CET. So हम इसको number of C ले लेते हैं, failed in CET. So 35 number of C and 40 in NEET. So NEET के लिए आप N ले लीजिए, 40 failed in NEET and 40 in JE. Number of J ले लो 40. So ये information हमने collect कर लिया. Next है 20 failed in CET and NEET. So number of C intersection N. CET and NEET में कितने failed हैं और ये सारे failed के result दिए हुए हैं data. So this is 20. 17 in NEET and JE. So number of N intersection J is given 70. Or NEET or 17 in NEET engine and 15 is CET and JE. So number of C intersection JE is given 15. And 5 failed in all three examination. That means number of C intersection N intersection J दी हुई है. ये टोटल क्या दी हुई है 5. ठीक है. सो तीन सेट को अगर मैं ऐसे एलॉबरेट करूं वेन डायग्राम में, दिस इज वन सेट, दिस इज अनदर सेकेंड सेट एंड दिस इज थर्ड सेट. लेट्स से इसको C बोल दिया, इसको N बोल दिया एंड इसको J कह दिया. CET, NEET एंड JE. तो ये 5 है यहाँ पे जो तीनों में फेल है. ये जो है ना ये पोर्शन तीनों का इंटरसेक्शन है. करेक्ट. सो वेन डायग्राम से भी नहीं करके आप डायरेक्ट इस रिजल्ट से भी कर सकते हैं. सो नाउ फर्स्ट पार्ट जो है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. डिड नॉट फेल एनी एग्जामिनेशन मीन्स कि टोटल पास स्टूडेंट कितने हुए. तो इसके लिए फर्स्ट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, बेसिकली जो ने पूछा है नंबर ऑफ C यूनियन N यूनियन J का डैश कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट. मतलब जो फेल्ड है सारी. ठीक है. नंबर ऑफ C यूनियन N यूनियन हु डिड नॉट फेल हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, जो फेल नहीं हुए, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. दिस वी हैव टू कैलकुलेट. करेक्ट. ये डैश याद रखिए, ये डैश है यहाँ पे. तो ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को पहले नंबर ऑफ C यूनियन N यूनियन J निकालना होगा. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट दैट वन, C यूनियन N यूनियन J. तो ये A B C तीन वाले रिजल्ट से होगा, जो थ्री फाइनाइट सेट्स में हमने ये रिजल्ट लिखा है. सो वी विल फॉलो दैट रिजल्ट. सो नंबर ऑफ C, number of N, then number of J
correct, minus number of C intersection N minus number of N intersection J and minus number of C intersection J, and plus it will be number of C intersection N intersection J आएगा. ये है, ये ऑल फेल्ड, एटलीस्ट सारे फेल्ड वाले आएंगे ये टोटल. और डैश का मतलब जो फेल्ड नहीं होंगे. तो मैं टोटल में से 200 में से एक्स में से ये वैल्यू माइनस कर लूँगा तो मुझे डैश निकल आएगा जो डिड नॉट फेल लिखा है. दिस इज व्हाट इट इज, डिड नॉट फेल. डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, इसका ये मीनिंग है. और ये जो हम यूनियन निकाल रहे हैं दैट इज ऑल फेल्ड. ठीक है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. 35, 40 माइनस C इंटरसेक्शन एन 20, N इंटरसेक्शन J 17, करेक्ट, माइनस 15 एंड दिस इज प्लस 50. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. वी विल हैव टोटल, प्रॉब्ली इट विल गेट, टोटल आ जाएगा अपने को 110 माइनस दिस गेट कैंसल 15, 15, दिस इज 37 एंड this one, so this we will get 68, 75 and this, so 68 मिल जाएगा. फाइन. बट हमें चाहिए क्या, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. सो नंबर ऑफ C यूनियन N यूनियन J का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, 200 माइनस नंबर ऑफ C यूनियन N यूनियन J का. और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ X यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ C यूनियन J यूनियन N. ठीक है, दिस इज व्हाट, डैश तभी निकलता है. सो फाइनली वी हैव 200 माइनस 68 which is nothing but 132 students. So this is the answer of the first question, that did not fail in any examination. For this 7th question, the first part, the answer came 132. फाइन. सो हमने ये तीनों सेट्स ले लिया. आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो. लुक एट दिस, 5 यहाँ पे है तो C के अंदर के एलिमेंट देख लो. 5 दिस, नंबर ऑफ C इज 35. तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐड करके देने होंगे. मैं हिंट दे रहा हूँ. दिस ऑल ऑफ यू ट्राई विद द वेन डायग्राम. C 15, 5 ये हो गया, ये 10 कर दीजिए. तो देखिए C को 35 मिल गया, 35 हो गया. N हमारा 8 यहाँ डाल दो, 12 यहाँ डाल दो, तो देखो 20, 30 to 40. एंड J में 10, 12, 5 हो गया, तो यहाँ रह गया 30. करेक्ट. अब यूनियन चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, पहले C यूनियन J पूरा टोटल निकाल के 200 से माइनस कर लोगे. दिस इज 30. तो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, और ये ABC 3 फाइनाइट सेट्स वाले रिजल्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप. फर्स्ट वन, correct. Now we'll see the second part of the question, failed in NET or JEE entrance. So second part में what we have to find, we have to find number of N union J. NEET और JEE में failed students कितने होंगे, NEET और JEE में. So NEET और JEE में failed students हो जाएंगे dear. इसको आप कैसे करोगे, number of N प्लस ये 2 फाइनाइट सेट्स की बात है, तो 2 फाइनाइट सेट्स का फॉर्मूला क्लियर है, विच इज नंबर ऑफ N इंटरसेक्शन J, नीट और J का इंटरसेक्शन. सो नंबर ऑफ N, नंबर ऑफ नीट के स्टूडेंट कितने हैं, 40. नंबर ऑफ JEE स्टूडेंट इज 40 एंड दोनों का इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन J है 70. सो ये अपने को मिल गया टोटल 63. तो ये कौन से स्टूडेंट हो गए, those students failed in. So total number of students failed in NEET or JEE, that is 63. correct. NEET and JEE में 63 students failed हो गए. सेकेंड पार्ट का आंसर इज गोइंग टू बी
63. This is 63. फाइन. सो आई बिलीव ये वर्ड कार्डिनलिटी के प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ के लीजिए. फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट मैं फॉर्मूला मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये वेन डायग्राम आप एनडीए में भी सीख सकते हैं और अभी भी आप कर सकते हैं. ट्राई योर सेल्फ. करेक्ट. बट ये थ्योरेटिकल जो है, ये अप्रोच आप अच्छे से सीखिए. फाइन डियर. सो नीट यूनियन जेई निकल गया. टोटल 63 स्टूडेंट्स हु फेल्ड. और फर्स्ट क्वेश्चन इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. The seventh question we have completed. Now we'll move to our next question. Did not fail यानी डैश कॉम्प्लीमेंट. टोटल 200 में से ये यूनियन माइनस कर लिया आपने. फाइन. चलिए, now we'll move to our next sum. See this problem it is. From amongst 2000 literate individuals of a town, literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English, 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read at least one of the newspaper. See, whenever this word at least will come, so आप समझ जाओ ये A यूनियन B की ओर इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. whenever at least one or A or B, that means A union B you have to calculate. Correct. So फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर ले. नंबर ऑफ X यूनिवर्सल सेट कह लीजिए, X ले लीजिए. दिस इज 2000 लिटरेट पीपल. 2000. देन वी हैव 70% जो है वो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो नंबर ऑफ M 70% ऑफ 2000 लेंगे आप. 70% ऑफ 2000 literate people में those are reading Marathi newspaper. So this is going to be 1400. Similarly, number of English newspaper कितना हो गया? 50% of 2000. 50% of 2000. This is going to be 1000. And then 32.5% of both read Marathi and English newspaper. So M intersection E is 32.5% of 2000. So this is going to be 650. तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड बोथ पढ़ने वाले निकल गए. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज at least one newspaper. That means we have to find number of M union E. ये फाइंड आउट करना है. मैंने बोला एटलीस्ट जब से ही बात हो तो आप क्या समझेंगे इसको? A यूनियन B. इधर A और B. तो या तो मराठी और इंग्लिश पढ़ने वाले. इसके लिए रिजल्ट हो यूज कर लेंगे आप. नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ M intersection E. Correct? So now substitute the values. Number of E is 1000 minus intersection is 650. इसको simplify कर लीजिए. So you will get 1750. ठीक है. So first का आंसर आ गया अपने को 1750 people, literate individuals who read either Marathi or English newspaper. Correct? Now we'll move to our second question. Second में कह रहा है neither Marathi nor English newspaper. That means कि number of M union E का ये complement है. Means whenever if you go A union B complement, the meaning of this is neither A nor B. Correct? और मैथमेटिकली ये डिमार्गन्स रूल से क्या बन जाएगा? ए डैश कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. बट यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एम यूनियन ई डैश रखा है. ये क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन ई. तो
तो अगर ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप सोचेंगे कि विदाउट गेटिंग फर्स्ट तो डिफिकल्ट है, दैट इज वाई वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट फर्स्ट में हमने एम यूनियन ई निकाला। अब हमें चाहिए क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट विच शोज दैट नीदर मराठी नॉर इंग्लिश। दिस इज व्हाट सेकंड का मैथमेटिकल फॉर्म दिख रहा है, ये नीदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो नंबर ऑफ एम यूनियन ई डैश और कॉम्प्लीमेंट। So number of x we have 2000 minus 1750. So these are literate people, 250 literate people who neither read Marathi nor English newspaper. So this is going to be 250. Fine. Now the last part of the sum, it is only one of the newspaper. Only one of the newspaper. First, we have to understand the meaning only one of the newspaper. Only one of the newspaper. इस वर्ड को हमें मैथमेटिकली ऐसे एलॉबरेट करना है, इनफैक्ट सेट थ्योरी के लैंग्वेज में दिस इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ ए बट नॉट बी, मीन्स नंबर ऑफ मराठी बट नॉट इंग्लिश, ऐसा लिख सकते हैं इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ डियर, इरेज करके। यहाँ पे पहला यूज करेंगे हम नंबर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर मीन्स नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डैश प्लस, मतलब मराठी पढ़ेंगे बट नॉट इंग्लिश, और दूसरा प्लस डाला मतलब और इंग्लिश बट नॉट मराठी। इसका मतलब हो गया कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डैश मीन्स मराठी बट नॉट इंग्लिश, और इस प्लस का मतलब और नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एंड नॉट मराठी, दैट इज द सेंस ऑफ ओनली वन न्यूज़पेपर्स, ठीक है। नाउ वी नो दिस रिजल्ट, we have already discussed this result, that A intersection B dash, what we write, number of A, ये क्या है, A but not B, so number of A minus number of A intersection B होता है। This is what result we have written in cardinal number. So same way here, number of M minus number of M intersection E plus, यहाँ आ जाएगा number of E minus number of E intersection M या M intersection E, both are the same thing. So now we substitute the value, number of M we have how many number of 1400, this is 1400 minus M intersection E we have 650 plus number of E we have 1000, and again this is 650. So total we will have 2500 minus 1300. It is going to be 2500 and 1300. So this is going to be how much? 650 is your intersection, correct? $1400 plus 100 it is. Fine. 14 plus 25 and 1300. It is going to be 1200. Fine. So the answer is going to be 1200 people who read only one newspaper. Correct? Check it once again. 14 plus 1000, 24,000, and 24 minus 13, it is 11 dear. 11,000. Correct? This is 11,000, 1100. 1100. So the final answer is 1100. 1100 people read only one of the newspaper. Clear? Only one. It has to be clear to all of you. Marathi but not English, or English but not Marathi newspaper. And we know this number of A intersection B dash, number of A dash intersection B, what we write? Number of B minus number of A intersection B. इसको क्या पढ़ते हैं, B but not A,
यहाँ पे क्या है, A but not B, correct? This is B but not A, and here this is A but not B. Fine, this is the meaning of this notation, number of A intersection B dash. The same formula we have used here, and we substituted the value. The answer came 1100. So these two questions from this question number 8, फर्स्ट ऑफ ऑल आप परसेंटेज को नंबर में डालते हैं, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ द, सो एटलीस्ट के लिए यूनियन आ गया. देन वी कैलकुलेट यूनियन. नीदर मराठी नॉर इंग्लिश मीन्स एम यूनियन ई का आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट इज नोन एज नीदर मराठी नॉर इंग्लिश. सो नंबर ऑफ एक्स में ये यूनियन माइनस हो जाएगा. एंड फाइनली ओनली वन ऑफ द न्यूज पेपर, एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट. Now we'll move to our next problem. Look at this. Question number 9. See, in question number 9, what they have given, in a hostel, 25 students take tea, correct? So information we have to write now first. Number of tea is 25. 20 students take coffee. Number of C is 20. Sorry, number of 20. 15 students take milk. Number of milk, number of students who are taking milk is 50. 10 students take both tea and coffee. Tea and coffee. So T intersection C is 10 students. 8 students take both milk and coffee. Number of milk intersection coffee is 8. 8 students take both milk and coffee. None of them take tea and milk both, and everyone take at least one beverage. This is what important here to understand. None of them take tea and milk both, correct? And everyone takes at least one beverage. Means none of them take number of, you can say, milk intersection T is what? This is 5, or you can say 0. And everyone takes at least one beverage. यानी यूनियन अगर देखा जाए तो सब कुछ ना कुछ पीते ही हैं, करेक्ट? मिल्क भी पीते हैं, कॉफ़ी भी, टी भी. नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं हमारे. तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स क्या हो गया कि हमें यूनियन चाहिए, टी यूनियन सी यूनियन एम, ठीक है. टी पीने वाले, कॉफ़ी और मिल्क पीने वाले. सो इसके लिए हम नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एम, करेक्ट. फिर आप माइनस क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन टी और प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी. और ये भी क्या है, एम एवरी वन टेक्स एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज. और यहाँ पे तीनों पीने वालों की भी संख्या क्या है, एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, दिस इज ऑल्सो 0. फाइन. सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 25 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 10 minus 8 minus 0 plus 0. So this is going to be 42. The answer came 42. The number of students will be 42. So this is going to be the answer. Clear? क्योंकि ये तीनों पिलों में रहने वाले भी 0 हैं और लिखा है ना, none of them take tea and milk. तो टी एंड मिल्क की जो कॉम्बिनेशन है वो 0 है. एंड द थर्ड इंफॉर्मेशन जो कह रहा है कि एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी वो भी 0 है, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल. सो ये यूनियन, ये इधर टी पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले और मिल्क पीने वाले. और उसने मेंशन किया है कि एटलीस्ट एवरीवन टेकिंग सम बेवरेज, कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं.
तो या तो टी, या तो कॉफी, या तो मिल्क. So this is what we have to find. And these two informations are given, that is 0. So the total number of students came in that hostel who drinks all three beverage is 42. Clear, I believe, this one. Now we'll move to our next problem. Look at this question number 13. A college awarded 38 medals in volleyball. So let's say number of V is 38. 15 in football, number of F is 15. And 20 in basketball, number of B is 20. The medals awarded to a total of 58 players, and only 3 players got medals in all 3 sports. Right? So all 3 sports में किनको मिला मेडल? 3 को मिला. So total अगर that means देखिए तीनों का intersection V intersection F intersection this B basketball, these are 3 only. The medals awarded a total of 58 players. 58 players को total award दी गई. If you say, that means the union, the number of volleyball, union football, union basketball is given to be 58. Correct? 58 players, a total of 58 players got a medals in all 3, and 3 players got medals in 3 sports. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? Correct? Now we have to find how many received medals in exactly 2 of the 3 sports. Fine? तो इसको समझने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है, what exactly we have to find. So इस तरह के सब में आप इंफॉर्मेशन देखो, फॉर्मूला मेथड इज नॉट अ राइट अप्रोच हियर, और वो अपने को क्लियर नहीं करके देगा ये सब. तो रादर गोइंग अ फॉर्मूला मेथड वी विल चूज वेन डायग्राम मेथड. ठीक है? तो आप ये वेन डायग्राम मेथड को समझ के लीजिए, जो आप प्रीवियस सम में भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ. सो लुक एट द वेन डायग्राम मेथड, किस तरीके से इस तरह के सम हम करेंगे, ध्यान से देखिए. ये हमने 3 सेट बना लिया. फर्स्ट इज वॉलीबॉल, सेकेंड इज फुटबॉल, एंड थर्ड इज बास्केटबॉल. ठीक है? नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन जो कह रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हमने निकालना है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स. ठीक है? तो हमने लेट ऐसा सोचा कि लेट A equals to number of students getting medal in volleyball and football but not basketball. ठीक है? क्या करते हैं हम, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A जो मैं ले रहा हूँ, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? मेडल्स इन वॉलीबॉल में मिल रहा है इनको, एंड फुटबॉल में, बट नॉट इन बास्केटबॉल. इसको B डैश कर दीजिए. ठीक है? एक दूसरा सेट लिया हमने B, जहाँ पे तो ये एग्जैक्टली 2 हो गया, वॉलीबॉल और फुटबॉल में मिल रहा है बट नॉट इन बास्केटबॉल. फिर हमने B ले लिया, गेटिंग मेडल्स फुटबॉल में मिल रहा है इनको. ठीक है? और बास्केटबॉल में मिल रहा है बट नॉट इन वॉलीबॉल, इसको डैश कर दीजिए. एंड थर्ड सेट C हमने ले लिया. अब अब ले लूँगा कि बास्केटबॉल में मिल रहा है, फुटबॉल में बास्केटबॉल में मिल रहा है और वॉलीबॉल में मिल रहा है बट नॉट इन फुटबॉल. ठीक है? ये डैश का मतलब नॉट हो गया. ठीक है? सो ये 3 सेट्स हमने कलेक्ट किया. लेट A is a set, A is number of students, you can say A is number of students who are getting medals in volleyball and football but not in basketball. Similarly, B is the number of students who are getting medal in football, basketball,
फुटबॉल में मिल रहा है उनको, बास्केटबॉल में मिल रहा है, बट नॉट इन वॉलीबॉल. Similarly, C is the number of students getting award in basketball, volleyball, but not in football. ठीक है. सो ये ABC को अपने को अच्छे से समझना होगा. ठीक है. सो ABC इट इज क्लियर. नाउ अब मैं इसको एलॉबरेट कैसे करूं ABC में. तो पहले हमारे पास इस समझने के लिए वेन डायग्राम में हमने अगर इसको नंबर ऑफ वॉलीबॉल यूनियन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल इज इक्वल टू लिखा, इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू वॉलीबॉल. ठीक है. वॉलीबॉल में अभी यहाँ पे देखिए, और 3 प्लेयर्स जो हैं कॉमन है, उनको अवार्ड मिल रहा है. ठीक है. 3 इज कॉमन. सो अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ, ठीक है, ये ए यहाँ रखा, इसको बी यहाँ लिया और सी ऐसे स्टूडेंट लिए. ठीक है. तो वॉलीबॉल कितना हो जाएगा, 38 माइनस ए प्लस सी प्लस 3, ये माइनस होगा. ठीक है. 38 माइनस ए प्लस सी प्लस 3. तो मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ 38 माइनस ए प्लस सी प्लस 3, करेक्ट, प्लस अब आते हैं बी में, फुटबॉल वाले में. तो यहाँ पे फुटबॉल में मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 माइनस, फुटबॉल में 15 है, 15 माइनस ये एरिया जो है, ये पोर्शन, ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन में जो डार्क कर रहा हूँ, लुक एट दिस. तो 15 माइनस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 3, करेक्ट. तो ये ओनली फुटबॉल और कौन से आ जाएंगे, बास्केटबॉल. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे हो गया 15 माइनस ए प्लस बी प्लस 3. ठीक है. एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स. एंड थर्ड में हो जाएगा बास्केटबॉल 20 है, तो 20 माइनस ए बी प्लस सी प्लस 3, करेक्ट. तो यहाँ पे आ गया बी प्लस सी, और तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस बी प्लस सी प्लस 3. ठीक है. ये कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, करेक्ट. दिस इज द पोर्शन. तो एग्जैक्टली वॉलीबॉल एंड सी किसको ले रहा हूँ मैं, सी लिया है मैंने, वॉलीबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल और नॉट फुटबॉल, करेक्ट. फाइनली प्लस हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन नॉट वॉलीबॉल, इनका इंटरसेक्शन और इनका इंटरसेक्शन. तो ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा कौन सा है, 3. तो ये 3 डाल दिया. ठीक है. ये आ गए यूनियन का पार्ट. अब अगर आप पूरे को ऐड करो तो ये इट लुक्स लाइक एवरीथिंग द सेम. ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 भी दिख गया है यहाँ पे, दिस वन. और ये ए का वॉलीबॉल का हो गया, ये फुटबॉल का हो गया, ये बास्केटबॉल का हो गया, करेक्ट. अब इसको हमने टोटल सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पे 58 है, और ये माइनस वैल्यूज आप एक जगह कलेक्ट कीजिए. तो ये 38 प्लस 15, दिस इज गोइंग टू बी 53 एंड 20 73. और यहाँ से ये आएगा 38 प्लस 15 कितना हो गया डेयर, यहाँ 3 भी है ना माइनस, तो ये 35 इधर हो गया, इधर 12 हो गया. सो टोटल अपने को यहाँ मिल जाएगा 67 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट. चेक कर लीजिए, कुछ टर्म कैंसिल भी हो रहे हैं. सो फाइनली वी हैव ए प्लस बी प्लस सी is equal to 9. 67 minus 58. This is 67 minus 58. So this is the 9. These 9 is what? Number of players. ये 9 क्या मिला, इसको मैं वर्डिंग लिख देता हूँ. Therefore, number of players who received medals in exactly 2 of 3 sports. 2 of 3 sports, करेक्ट. ये हमें टोटल नंबर आ गया विच इज 9.
करेक्ट. सो 9 इज द करेक्ट आंसर. ये एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में आया, इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज किया गया. ठीक है ना. नंबर ऑफ स्टूडेंट ए विच इज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल. फिर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट वॉलीबॉल. एंड सी वी हैव टेकन बास्केटबॉल, वॉलीबॉल बट नॉट फुटबॉल. ठीक है. इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये. वेन डायग्राम में भी आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा है, आप इसको देखिए. 38 माइनस ए प्लस सी प्लस 3 विल गिव यू व्हाट? नंबर ऑफ वॉलीबॉल ओनली. ये पोर्शन आएगा. अगर मैं इसको डार्कन करूं तो आप इसको अच्छे से समझिए. तो ये जो v वाला है, नंबर वाला v, ये इतने दूर का पोर्शन है. ठीक है ना. ये पोर्शन है. दिस इज योर v. करेक्ट. तो वो कितना आ गया? 38 माइनस ए सी प्लस सी 3. अगर आप फुटबॉल देखें तो ये एरिया कितना है? दिस इज देयर, दिस एरिया, नंबर ऑफ f. करेक्ट. एंड देन ये वाला पोर्शन क्या आ गया? केवल वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का. और ये तीनों मैंने ऐड किया यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3. ये जो एरिया रह गई है, दिस वन. ठीक है. दिस एरिया, ये जो एलिमेंट्स है इनके. करेक्ट. तो दिस वी हैव एडेड a प्लस बी प्लस सी प्लस 3. तभी हमें ये तीनों यूनियन देगा. और ये हमें बता रहा है कि ये क्या क्या है, ABC इनमें कौन कौन से हैं. तो ABC हमारे हैं कि एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है. तो हमने फाइनली a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट किया. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. Now look at the next problem of the word problem. Go through करेंगे अच्छे से. You will understand there is nothing difficult in this. Now look at the question number 10. ठीक है. So there are 260 persons with a skin disorder. 260 persons. So let's say number of x ले लीजिए. यूनिवर्सल सेट के लिए हो जाएगा ये 260 persons. If 150 had been exposed to the chemical A, so number of chemical A is 150. Then 74 to be chemical B, so number of B is 74. And 36 both chemical A and B, so number of A intersection B is, this is 36. Correct. These are information available from the question. Now the first question is chemical A but not chemical B. So this is clear, I believe. ये हमने A but not B का concept देखा है. So what we have to find? Number of A but not B. This we have to calculate for the first part of the question. So what is that? So number of A intersection B not को आप क्या लिखते हैं? Number of A minus number of A intersection B. Clear? This is what A but not B. So 150 minus A intersection B is 36. So this is going to be 114. So the answer of the first question is 114. Fine. These are number of persons exposed to chemical A but not chemical B. So 114 skin disordered persons exposed to chemical A but not chemical B. Second part of the question is chemical B but not chemical A. That means what we have to find? B but not A. B intersection A dash. So this is mathematically and with the rule of set, number of B minus number of A intersection B. Number of B is given 74 minus intersection is 36. So this is going to be 38. So these are the persons exposed to the chemical B but not chemical A. So this is going to be 38. Correct? Formula अपने को ये A but not B वाला हमेशा ध्यान में रखना है. Now the third part of the question is chemical A or chemical B. That means A union B. What we have to find? Number of A union B.
So A union B will be what? Number of A plus number of B minus number of A intersection B. This is what cardinality result. So number of A is given 114. Number of B is given to be, number of A is, what is given? Number of A 150. So this is 150 plus number of B is 74 minus intersection is 36. So this is going to be 1, how much it came? 4224 minus 36. So this is going to be 188. So chemical A or chemical B is going to be 188. Correct? So these are some word problem question in cardinality based problem these are. So all of you go through all these sums one by one, and I am giving you some questions for homework also. There are also some word problem, those you can try. Either you can go this cardinal theorem method और वेन डायग्राम मेथड, इट्स योर कॉल, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो उस मेथड से करें. तो ये सब भी क्लियर है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी के पार्ट को समझना. इसके लिए हमने क्या आपको नोटेशन बोला? ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें कैलकुलेट किया. सेकेंड केमिकल बी बट नॉट ए, सो बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हमारा सेकेंड था. और थर्ड इज ओनली ए यूनियन बी, ए और बी लिखा है, दैट इज ए यूनियन बी. क्लियर? So these three results is in front of you. Go through this type of sums twice. वीडियो को आप 2 बार देखिए, 1 by 1. ठीक है? All the sums you go through. Sit with pencil, copy, pen के साथ बैठिए. जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, वैसे वैसे आप भी कलेक्ट कीजिए, and you will get the right approach and right answer for this type of a word problem. Now dear, we'll move to our next problem. इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले डियर वी हैव टू डिस्कस द इनइक्वालिटी पार्ट, और यू कैन से द इंटरवल. ये दोनों टाइप जो हैं 14th एंड 15th, इसके लिए हम थोड़े बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं. लुक एट दिस. द बेसिक चीज़ इज, पहले हमें ये इंटरवल्स को समझ के लेना है. ठीक है? सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द इंटरवल्स. ये कंसेप्ट पहले हम समझेंगे एंड देन विल डिस्कस दिस 14th एंड 15th. इंटरवल्स क्या होते हैं? सी इन मैथमेटिक्स में और इनफैक्ट सेट से ही ये स्टार्ट होता है. फर्स्ट कहते हैं वी हैव इंटरवल, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल. ठीक है? इंटरवल आप समझ ही रहे हैं, द गैप बिटवीन 2 नंबर्स. पहला हमने लिखा ए बी. इसको ऐसा ब्रैकेट लिखने का मतलब है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल. दोनों साइड ऐसा ब्रैकेट दिख रहा है, वी कॉल इट एज ए ओपन इंटरवल. ठीक है? इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं. इसका मतलब अगर मैं नंबर सिस्टम पे ए एंड बी मैंने ड्रॉ किया, माइनस इन्फिनिटी हियर प्लस इन्फिनिटी हियर, रियल नंबर. ए बी ओपन इंटरवल का मतलब है कि एक्सक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, ए और बी को छोड़ के इसके अंदर के जितने नंबर्स होंगे दोज आर इन इंटरवल ए बी. ठीक है? एक्सक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, इसलिए मैंने यहाँ पे हॉलो रखा है, ए और बी नहीं इंक्लूड होगा इसमें. तो एक्सक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी और इनके बीच के नंबर. लेट्स से अगर मैंने लिख दिया -1 2 3, दैट मीन्स ये इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो x सच दैट x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 -1 और लेस देन 3 होगा. ठीक है? वेर x बिलोंग्स टू रियल वॉट एवर यू कैन राइट. करेक्ट? तो अंडरस्टूड. ये दोनों क्या मतलब हुआ? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1, यानी इक्वल टू नहीं है. हमने 1 से -1 से बड़ा और 3 से छोटा लेना है. 3 और -1 दोनों ही इंक्लूड नहीं है. सपोज एक और मैंने इंफॉर्मेशन लिखा -3, 0. ठीक है? तो इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स
यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल लिख दो, ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हो। कैसा है ये x ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली लेस हुआ। और ग्रेटर देन इक्वल टू में ऐसा एक डंडी नीचे डालते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होता है तो ये इक्वल टू के लिए एक नीचे डंडी डालते हैं। ठीक है, बट ये स्ट्रिक्टली का मतलब एक्सक्लूडिंग -1, एक्सक्लूडिंग 3, एक्सक्लूडिंग -3, एक्सक्लूडिंग 0, मतलब छोड़ के, -3 और 0 को छोड़ के इसके अंदर के सारे रियल नंबर इस इंटरवल में होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस सेकेंड जो इंटरवल का टाइप है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल। ए बी और ऐसे बॉक्स बना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसका मीनिंग है डियर कि ए और बी को हम इंक्लूड कर लेते हैं। ए और बी को इंक्लूड करते हैं, यानी डार्कन से अब डार्क कर दिया यहाँ दोनों। ठीक है, वहाँ हॉलो रखा है मैंने और यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया। यानी इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो ए बी को आपको ऐसे लिखना होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और ये x कहाँ से कहाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, यानी इंक्लूड करना है इनिशियल और फाइनल दोनों बाउंड्री को, ए और बी को इंक्लूड किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, लेस देन इक्वल्स टू बी। लेट्स से अगर मेरे पास ऐसे लिखा है -2 to 0, ये इंटरवल क्या हमें बता रहा है, ये इंटरवल बता रहा है कि x सच दैट x जो बिलोंग्स टू रियल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 0, इनके बीच के सारे नंबर -2 भी, 0 भी, और इनके अंदर के जितने रियल नंबर होंगे वो सारे इस क्लोज्ड इंटरवल में होंगे, कहलाते हैं। -2, 0 क्लोज इंटरवल का मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ -2 और 0 के बीच के -2 भी, फिर -2 से बड़ा, और 0 भी और 0 से छोटा, -2 और 0 को इंक्लूड करना है। दैट इज व्हाट वी कॉल क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ क्या था, केवल स्ट्रिक्टली लेस था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, स्ट्रिक्टली लेस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, स्ट्रिक्टली लेस। ठीक है, वो ओपन में होता है, इसको क्या कह देंगे, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली ग्रेटर और लेस, ग्रेटर और लेस। किस साइन को, ऐसे जो होता है ये या ये, और यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू, ये साइन और ये साइन क्या बोलेगा अपने को, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, सो ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल इज क्लियर। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लीजिए, 4 to 9। इसका मतलब क्या हो गया ये, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख लो तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 9, ऐसे समझो रफली कि x कौन कौन से x हैं, इनके 4 और 9 के बीच कौन कौन से नंबर होंगे, 4 होगा, 4 से बड़ा जितना रियल, और 9 होगा, और 9 से छोटे जितने रियल। 4 और 9 दोनों इंक्लूड होंगे, दीज टू इंक्लूड, ये इंक्लूड किए जाते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। क्लियर है, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, दीज टू इंफॉर्मेशन। अब हमारा थर्ड टाइप है इसमें, इसको कहते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। दिस इज लाइक कि ओपन होता है, सेम ओपन से स्टार्ट होगा ओपन से और एंड होगा क्लोज से। दैट मीन्स कि अगर मैं ए और बी दो ले लिया नंबर, तो ए को हमें एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करना है। ठीक है, ऐसा डाकन कर दिया, बी को लेना है और ए को नहीं लेना है। तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो ये कैसा होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, दिस इज द सेंस ऑफ सेमी ओपन। सेमी ओपन बोला यानी ओपन होगा, स्टार्ट होगा ओपन से,
लेट्स से अगर ऐसे लिखा है 2 to 4, that means x greater than 2 less than equals to 4. That is the meaning of this semi open. ठीक है, दिस इज सेमी ओपन. क्वाइट नेचुरल फोर्थ कैसा होगा? सेमी क्लोज्ड होगा, विच इज ओपन विथ क्लोज्ड. स्टार्ट होगा क्लोज से, एंड होगा ओपन से. दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, दिस इज नोन एज सेमी क्लोज्ड इंटरवल. दैट मीन्स कि अगर मैं इसको वेंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल x greater than equal to a but less than equals to, strictly less than b. Strictly, there is no dundee, ये strictly होगा. So example देख लो आप. Let's say 6 और ये 10 है, ओपन दिया है ऐसा. दिस इज ओपन. हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? x greater than equals to 6 but strictly less than 10. That is the meaning of semi closed interval. -1 to 0, which means ये क्या है? x greater than equal to -1 और लेस देन 0. वो सारे रियल नंबर इसमें आएंगे. ये हो गया हमारा सेमी क्लोज्ड इंटरवल. आई बिलीव ये चारों टाइप क्लियर है आपको. वंस अगेन यू गो थ्रू. ओपन इंटरवल्स मतलब दोनों स्ट्रिक्टली होते हैं. -1 3, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1, स्ट्रिक्टली लेस देन 3. क्लोज्ड इंटरवल में दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आ जाता है. ठीक है, ये बॉक्स हो गया अपना क्लोज्ड इंटरवल. दोनों ही बॉक्स से बंद होगा. एंड थर्ड इज सेमी ओपन. स्टार्ट होगा ओपन से, एंड होगा क्लोज से. एंड सेमी क्लोज्ड स्टार्ट होगा क्लोज से और एंड होगा ओपन से. That is semi-closed interval. Fine. So ये हमने we have discussed about intervals. Now the first question is, now 14th question says, in fact आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं. जब ये इंटरवल्स के टाइप समझ गए आप तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 इन योर टेक्स्ट बुक. वहाँ पे मेंशन करना था राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म. पहला क्वेश्चन था -3 0. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0. फाइन. सेकंड में था वी हैव 6, 12. क्लोज्ड इंटरवल है ये. तो आप इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12. अगर आप इसको रोस्टर में लिखना चाहते हैं तो रोस्टर आपको ऐसे दिख रहा है. ये रोस्टर फॉर्म में अगर चाहो तो और डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0. हियर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12. ठीक है, ये एट द एंड ये समरी आपको दिमाग में रखना है. ठीक है ना, ये समरी. वो हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ बट समरी जो है इसका is these. Third one is this is given 6 to infinity. ठीक है, ओपन इंटरवल है. x such that x belongs to real, x strictly greater than 6. ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी. हमेशा याद रखना है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल के साथ होता है. ठीक है, इन्फिनिटी जहाँ भी होगा, अगर माइनस इन्फिनिटी भी है तो हमेशा ओपन होगा, प्लस इन्फिनिटी है तो भी ओपन के साथ होगा. कभी भी इन्फिनिटी क्लोज्ड में नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी को वी कैनॉट टेक. एंड दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज व्हाट वी कॉल रियल नंबर. द रियल नंबर विच इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. दिस इज व्हाट अ रियल नंबर वी से. ठीक है, फोर्थ इसमें देख लो. The question is -infinity to 5. क्लोज्ड किया है यहाँ, क्लोज्ड इंटरवल. सो x such that x belongs to real, x strictly greater than -infinity and less than equals to 5.
ठीक है, दिस इज व्हाट क्लोज्ड इंटरवल। तो आपने को इक्वल टू करना पड़ेगा। तो ये कैसा है, सेमी ओपन, सेमी ओपन। ये क्या था, ओपन। ये क्या था, क्लोज्ड। ये क्या था, ओपन, ओपन इंटरवल। फाइंड हियर। सो दीज आर फ्यू सम्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। एक और देख लीजिए, फिफ्थ वन इज 2 to 5, क्लोज्ड किया है 2 to 5 में। दैट मीन्स x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल x ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक और देख लो, सिक्स्थ भी दी हुई थी, -3 to 4। ये क्या है, सेमी क्लोज्ड है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है क्लोज से और एंड हो रहा है ओपन से। तो आप इसको लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल such that x greater than equals to -3 and strictly less than 4। तो ये कैसा इंटरवल है, सेमी क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज तो क्लियर है डियर। सेमी में और ध्यान रखना है, सेमी ओपन में क्या होता है, स्टार्ट होता है ओपन से और एंड होता है क्लोज से। सेमी क्लोज्ड में क्या होता है, स्टार्ट होता है क्लोज से एंड एंड होता है ओपन से। और एट द एंड समरी ये हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गए क्लोज वाले पार्ट और लेस स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो गया तो ओपन हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट समरी। सो दिस इज व्हाट योर टेक्स्ट बुक, दिस क्वेश्चन नंबर 12 इट वाज गिवन, जहाँ पे आपको इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन करना था। समरी अच्छे से समझ के लिए, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 6 to infinity को क्या बोल सकता हूँ, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये सेंस हुआ यहाँ पे। ये आपको मोटा मोटी तौर पे याद रखना है, दिस यू हैव टू बी क्रक्स। और ये हम सेट बिल्डर में लिखते हैं इसको। नाउ वी हैव दीज टू क्वेश्चंस, लुक एट दिस, व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग इंटरवल नोटेशन। जो भी इनके आंसर आएंगे उसको हमें इंटरवल नोटेशंस में लिखना है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल सी, 14 का फर्स्ट देख लेते हैं। लुक एट दिस, फर्स्ट वन, इनइक्वालिटी दी हुई है -9 2x + 7 लेस देन इक्वल्स टू 90। ठीक है, चलिए, तो हमें x की सोल्यूशन चाहिए, यानी सॉल्व कह रहा है, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो इनइक्वालिटी है 2x + 7 है, तो आप दोनों साइड क्या करो, -7 ऐड करो, तो ये होगा, यानी एवरी साइड ईच टर्म में आप -7 कीजिए, देन ओनली दिस 7 गेट कैंसिल, -7 किया। ठीक है, 19 - 7 हर एक टर्म में, करेक्ट। तो अब क्या मिल गया, -16 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू 12। और इनइक्वालिटी की साइन तभी फ्लिप होती है जब आप बोथ साइड्स यू मल्टीप्लाई विथ माइनस, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय माइनस साइन। माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी साइन गेट फ्लिप्ड, इनइक्वालिटी साइन गेट फ्लिप्ड या चेंज, इनइक्वालिटी साइन गेट चेंज्ड। ठीक है, तो अभी तो हमने माइनस से इंटू नहीं किया, बट अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, x चाहिए, पॉजिटिव 2x है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, -8x लेस देन इक्वल्स टू 6। सो दिस इज द सिचुएशन। अब इसको हमें क्या करना है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स इसका सोल्यूशन हम लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल -8, बिकॉज देखो ये स्ट्रिक्टली लेस है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, एंड 6 में क्लोज कर देंगे। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, बिकॉज आप इंटरवल समझ गए हैं तो आपको यहाँ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर -8 और लेस देन इक्वल्स टू 6 मिला। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस,
second one, this is given x square minus x greater than 20, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 20। तो अब आप क्या करें, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इस 20 को लेके इधर आ जाइए, तो ये -20 ग्रेटर देन 0, +20 इधर आके -20 हो गया। इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, +20 इधर आके -20 होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी की साइन तभी चेंज होगी जब आप माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब इसके फैक्टर को देख लीजिए, यहाँ पे इसका फैक्टर क्या मिल रहा है अपने को, x -4 x +4 इंटू x -5 मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी फैक्टर ग्रेटर देन 0। अब मुझे x का यहाँ सोल्यूशन लिखना है, तो यहाँ पे हम एक देर वेवी कर्व मेथड सीखेंगे। वेवी, ठीक है, इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं, वेवी कर्व मेथड। बुक में और भी कई तरीके से सिखाया जाता है, बट ये मेथड आप सीखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगता है। यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए, 5 और -4। इसको हम रियल नंबर पे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ -4 और ये 5 आ गया, और यहाँ तो ये -∞ होगा और ये +∞ होगा। ये नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पे ये कितने फैक्टर हैं, 1 और 2, तो 2 यानी इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर। जब 2 फैक्टर हुआ यानी इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर में जो रूट्स आपके 2 हैं, पहले रूट के पहला हम साइन देंगे, जब इवन फैक्टर होगा प्लस देंगे, फिर माइनस देंगे और फिर प्लस देंगे, ठीक है, रूट्स के बीच में। इवन फैक्टर में क्या करेंगे, जो पहला रूट है, जो लीस्ट सबसे स्मॉल रूट है, उसका पहला साइन क्या होगा, प्लस, ठीक है, फिर माइनस, ऑल्टरनेट देते हैं, प्लस माइनस प्लस। प्लस बताएगा ग्रेटर वाला एरिया, ग्रेटर इनइक्वालिटी का, और माइनस बताएगा जब वो लेस होगा। तो यहाँ पे हम डेयर क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, इसका सोल्यूशन जो होगा वो होगा -∞ से -4, क्योंकि प्लस वाला पार्ट है ये, ठीक है, और दूसरा प्लस वाला पार्ट 5 to ∞ है, तो यूनियन 5 to ∞, ठीक है, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली है तो सारा ही ओपन इंटरवल में है, x बिलोंग्स टू -∞ to -4 और यूनियन 5 to ∞। तो दिस वेवी कर्व यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली, ठीक है। ये मैंने दो फैक्टर के लिए किया। अगर इफ़ यू हैव 3 फैक्टर्स, लेट्स से वेवी कर्व को और थोड़ा क्लियर करते हैं। सपोज वी हैव फैक्टर x +4, x -5 एंड x +1, और ये लेस देन 0 अगर है, तो पहले तो इसके रूट्स आपके क्या क्या मिल गए, -4 देन -1 एंड देन 5, ठीक है। यहाँ पे ये -∞ है और इधर +∞ है। अब ये कितने हैं, ऑड फैक्टर है, दिस इज ऑड फैक्टर, 3 है ना, तो ऑड फैक्टर हो गया। तो विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रियल नंबर, जो रूट से पहला, सबसे जो लीस्ट रूट है उससे पहले माइनस देंगे। यहाँ क्या दिया हमने, प्लस दिया, क्यों, क्योंकि इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर, फाइन, दैट इज वाई एक पुट प्लस हियर। यहाँ पे ऑड फैक्टर है, सो विल पुट ऑल्टर माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमारे पास दिया है इनइक्वालिटी में लेस देन 0, यानी नेगेटिव वाले इंटरवल्स इसमें कलेक्ट करेंगे। तो x बिलोंग्स टू, पहला क्या आएगा, -∞ to -4 यूनियन -1 to 5, ठीक है, ये दो आ जाएंगे माइनस वाले, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। तो यू विल हैव टू यूज वेवी कर्व मेथड, ठीक है। दिस इज व्हाट, वेवी कर्व मेथड, इसको अच्छे से सीखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फैक्टर में प्लस से स्टार्ट होती है, ऑड फैक्टर में विल स्टार्ट विथ माइनस। माइनस वाले इंटरवल लेस देन 0 के लिए होते हैं, प्लस वाले इंटरवल ग्रेटर देन 0 के सिचुएशन में होंगे, करेक्ट। सो हियर व्हेनेवर द फैक्टर कम्स, तो इनइक्वालिटी के साइन आपको इस तरीके, इंटरवल आप इस तरीके से वेवी कर्व से निकालते हैं। गो थ्रू दिस सब।
वी हैव वन मोर सिचुएशन ऑल्सो, इसमें एक और सम दी हुई है, फोर्थ वन. लुक एट दिस, 6x² प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5x. ठीक है, तो आप इसको भी वैसे ही कर लीजिए. 6x² प्लस को इधर ले आए तो ये -5x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया. इसके फैक्टर्स देख लेते हैं. इसके रूट्स आ जाएंगे x माइनस 1/3. इसका रूट्स निकाल लो और फैक्टर करके भी कर सकते हो. x माइनस 1/2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू. ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करने पे माइनस का साइन ये होने पे ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. ठीक है, आप करके देखिए. x को पॉजिटिव रहना पड़ता है, x को पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा व्हेन यू सिंप्लीफाई ऑल दिस. ठीक है, डिवाइड करने के बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो अब यहाँ पे आप उसके रूट्स को फाइनल करिए. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इनफैक्ट ये लेस है ना, ये साइन चेंज नहीं होगा, ये लेस ही रह जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0. अब इसके रूट्स कौन कौन से हो गए, 1/3 एंड 1/2. तो इवन फैक्टर है तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी इधर, प्लस माइनस प्लस. क्वेश्चन में क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो हमने ये वाला पोर्शन लेना है. ठीक है, दिस पोर्शन. सो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3 टू 1/2. ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल. क्यों क्लोज्ड होगा, बिकॉज इक्वल टू भी दी हुई है. ठीक है, दिस इज व्हाट सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी. वेवी कर्व यूज करके यू कैन गेट द इनइक्वालिटी. So dear, these are few sums which we have discussed. और ये जो आपका एक सम रह गया है, that all of you can try yourself. इंटरवल पहले लिख लेंगे, उसके बाद A यूनियन B, B यूनियन C, A यूनियन C, you can get it. मिल सकता है आपको. देख लें एक एग्जाम्पल करके क्विकली. लुक एट दिस 15th वन. अगर इसने इंटरवल में A इक्वल्स टू लिखा है -7 और 3 क्लोज्ड इंटरवल, तो एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाएंगे आपके. कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ, या आप इसको सेट बिल्डर में भी डाल के लिख सकते हो. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3. ठीक है, सो दिस वे यू कैन कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी एंड देन यू गो फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. एक्स सच दैट x belongs to real, x greater than equal to 2 and less than equals to 6. ठीक है, similarly we have C which is 4, 9 closed interval पे है. So this is x such that x belongs to real, x greater than equals to 4 and less than equals to 9. ठीक है, ये ABC हमारे इस फॉर्म में आ गए. Now the first question it is given A यूनियन B. ठीक है, A यूनियन B क्या हो. A यूनियन B में आपके कौन कौन से एलिमेंट दिख जाएंगे, x सच दैट x ग्रेटर देन -7 और लेस देन 3 है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 6 है. तो आप इसको नंबर पे भी प्लॉट करके कर सकते हो. यू हैव -7 हियर. ठीक है, यू हैव 2 हियर, 3 इज हियर एंड 6 इज हियर. इनका यूनियन चाहिए, तो यूनियन वी विल गेट व्हाट फ्रॉम -7 to 6 एंड 6 हमें इक्वल टू में लेना है और -7 ओपन में रखना है. सो दिस इज गोइंग टू बी -7 to 6 क्लोज्ड इंटरवल 6. ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, -7 और 6 क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्योंकि 6 देखो यहाँ पे इक्वल टू भी है ना, तो यहाँ पे ये एक्सक्लूड होगा और यहाँ पे इंक्लूड होगा. तो यहाँ डार्कन किया, यहाँ हॉलो रखा. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट all these values of the sets. Suppose I am taking इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, A dash intersection B dash means 7th one. A dash intersection B, करेक्ट. तो पहले तो A dash क्या होगा ये हमें ढूंढना होगा. A dash will be, ये हमें चाहिए. फर्स्ट A dash will be all real minus A. ठीक है, ऑल रियल माइनस ए. सो
पूरे रियल में से सेट ए को माइनस कर देंगे आप, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ऐसा कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा एलिमेंट, दिस इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी टू -7 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये ए डैश आ गया। अब आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है, तो बी के साथ इसका इंटरसेक्शन में क्या दिख रहा है, ये ए ये है एंड बी इज 2 6, तो इनका कॉमन क्या मिलेगा अपने को, 3 ओपन में रख लेंगे और 6 को क्लोज कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। फाइन, सो दिस इज व्हाट अ 15th क्वेश्चन नंबर। आप रिमेनिंग सम यू कैन ट्राई योरसेल्फ। So today we have discussed the cardinality and the intervals, and based on these problems in intervals. So dear, now we'll discuss, we'll show you the last segment, which is your homework area. So all of you can try these sums. Fine, take a screenshot of these. आप सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को 1 2 3 4 and let me know the answer. This is what homework for today's session. And go through all these problems because sets is now over. Sets के हमने types, operations and cardinal number based problems सीखा, तो sets is over now. And next class we'll start relation, which is after Diwali. So all of you take care all of yourself. पटाखे वटाखे से दूर रहिए। ठीक है, पोल्यूशन होता है तो अपने आप को बचाइए, पढ़ाई खूब कीजिए मन से, और ये चारों समाज ट्राई कीजिए बनाने का। जो जिन बच्चों से बनता है यू कैन पोस्ट द आंसर, अदरवाइज यू कैन आस्क, आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन दोज यू आर नॉट गेटिंग। बट फर्स्ट बिफोर डूइंग ऑल दीज 4 सम्स यू गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस थ्राइस, अच्छे से समझो हर एक एरिया को। सो डियर, wishing you all of you a very happy Diwali, and we will meet you after Diwali vacation. So meanwhile छुट्टियों में भी थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे। जितने भी सेगमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम एंड सेट्स, ये चारों टॉपिक आपने जो किया है इनको आप रिवाइज करते रहें, गो थ्रू करें। फाइन, नेक्स्ट क्लास में आफ्टर दिवाली वेकेशन वी विल स्टार्ट relations. So meanwhile go through all these area, revise करते रहिए। Fine, चलो, thank you, and we'll take a next class after Diwali vacation. Happy Diwali to all of you dear. Thank you very much.